گے. السلام علیکم. اسکردو ٹی وی کے ساتھ نجم الحسن سید حاضر خدمت ہے. آج پوری دنیا میں شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی 14ویں جو برسی ہے وہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی اسکردو ڈسٹرکٹ کے زیر اہتمام بھی پیپلز سیکریٹریٹ اسکردو میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے حضرات نے شرکت کی. اس وقت میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں اور جو رہنما ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. اقبال صاحب السلام علیکم. آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو مانا جاتا ہے اور یہ جو 27 دسمبر کا دن تھا اس کو ایک سیاح دن کے طور پہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اور خاص طور پاکستان میں گڑھی خدا بخش میں بھی آج پروگرام ہے جدھر پورے پاکستان سے نہ کہ صرف پیپلز پارٹی سے تعلق ہو یا نہ ہو، چونکہ محترمہ نے انسانیت کی بقا کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے اپنی جانیں دی ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ جمع ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جی بی میں پیپلز پارٹی بہت ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں پہ الیکشن میں ہارنا اور ہے، لیکن یہاں پہ جو 20-25 لاکھ کی جو آبادی ہے، میرے خیال سے پورا 20-25 لاکھ لوگوں کے دلوں میں، ہر ایک کے دلوں میں محترمہ بستی ہے، بھٹو بستے ہیں. یہ ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو آج پیپلز پارٹی ضلع اسکردو کے زیر اہتمام یہاں سے سیکٹر اسکردو میں پروگرام تھا. حالانکہ ہمارے قائدین جناب سید مہدی شاہ صاحب بھی اسکردو میں موجود نہیں تھے، اور بھی ہمارے بہت سینئر جو قائدین ہیں، ہمارے وحدت ورکرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی سیکٹر اسکردو میں، صرف یہاں سیکٹریٹ میں نہیں بلکہ پریشان چوک پر بھی، وہاں پہ بھی ہمارے جیالوں نے ایک بہت بڑا پروگرام کا انعقاد کیا. آپ دیکھیں کہ نہ پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، ان کی بس کی بات ہے کہ اسکردو میں ایک جگہ پہ یہ لوگ 100 آدمی جمع کر سکے. لیکن یہ دیکھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ ان کا خون کا یہ رنگ ہے کہ یہاں پہ 2 جگہوں پہ بلکہ 3 جگہوں پہ، اسکردو میں، روندو میں، شگر میں، کھرما میں، خپلو میں، اس سے چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ بھی محترمہ بے نظیر شہید کے حوالے سے لوگ کو محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ الرحمن یہ جو محترمہ کا جو ویژن تھا نا، یہ ایک نظریہ سوچ جو ہے کچھ لوگوں نے بلکہ ہمارے لوگوں نے اس کو اعتقاد کے طور پہ لیا. یہ دن بدن بڑھے گا، یہ کم نہیں ہوگا. بہت شکریہ. بشارت ظہیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشارت صاحب، پیپلز پارٹی کا جو بنیادی جو نظریہ ہے جس میں کسان شامل تھے، غریب شامل تھے، مزدور شامل تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی اسی مشن کو لے کر آگے بڑھی. آج آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسی مشن پر گامزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اسکردو ٹی وی کا شکر گزار ہوں. یقیناً دیکھیں آج محترمہ کو شہید ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ہوئے کوئی 50 سال سے اوپر ہوتا ہے. لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا یہ اس وقت یہاں اسکردو میں مائنس ٹمپریچر چل رہا ہے. اس کے باوجود بھی بلتستان کے 4 اضلاع میں اس وقت محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جو برسی منایا جا رہا ہے. اسی بات سے آپ اندازہ کریں کہ یہاں کے لوگوں میں، کیونکہ ان کی جو قربانی تھی بیسیکلی محترمہ شہید کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی غریب عوام کے لیے تھی، کیونکہ وہ شروع ڈے 1 سے وہی چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو طبقہ ہے، سب جو پسا ہوا طبقہ ہے، غریب عوام ہے، اور ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نعرہ ہی تھا کہ روٹی کپڑا اور مقام، اور اس کو محترمہ نے آگے اسی سلوگن کو آگے کیا. تو آج آپ میرے خیال سے خود آئی وٹنس ان تمام چیزوں کا کہ بلتستان جیسے دور دراز علاقے میں بھی محترمہ شہید کو اور اس عقیدت سے مانا جاتا ہے. اور آج جو ان کی برسی یہاں ہم اس سردی میں بھی یہاں کے جتنے بھی اضلاع ہیں، دیگر پاکستان میں آپ کو پتہ ہے گڑھی خدا بخش میں ہمارا مرکزی جو ایونٹ وہاں پہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ہر کونے میں، ہر کونے میں اور ہر چھوٹے قصبوں تک بھی محترمہ شہید کو یاد کیا جا رہا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا جا رہا ہے کہ محترمہ شہید جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور خصوصاً گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں ان کے دلوں میں بستے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ افضل سمیال صاحب بھی موجود ہے. افضل صاحب، پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی جماعت ہونے کے ناطے لوگ اس حساب سے آپ اٹریکٹ نہیں کر پاتے لوگوں کو؟ پیپلز پارٹی اور اسپیشلی محترمہ بے نظیر بھٹو ہر کسی کے دلوں میں آج بھی راج کرتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو اس حساب سے جمع نہیں کر پاتے، کیا وجہ ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कर्दू टीवी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे कवरेज दिया। पीपल पार्टी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसन भुट्टो साहब का और बेनज़ीर बीबी साहिबा के यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए बहुत यहाँ पे कुर्बानी दिए। और आज आपने सेक्टर में ही देखा, यहाँ पे लोग भरे हुए थे। हमने किसी को नहीं बुलाया था, किसी को इनवाइट नहीं किया था कि यहाँ पे आएंगे। उनको पता है कि 27 को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की यहाँ पे बरसी है और यहाँ पे हर किसी के दिल में, चाहे गरीब तबका हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे किसान हो, सबके दिलों में भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मोहब्बत बसती है। और मैं यहाँ पे जितने भी जियाले हैं, वो जितने भी वर्कर हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ इश्यूज़ होता है, उस इश्यूज़ को, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब दो फिर उसमें बांटा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं। और हर ज़िले में आज देखिए, शिगर में भी है, खपलू में भी, जिस तरह हमारे बशारत ज़हीर साहब ने भी कहा, खरमा में भी है, उस वहाँ पे भी लोग भरे हुए हैं और उस अक़ीदत को और उस बरसी को मनाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ रहे। और वहाँ पे शेर अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीएस पार्टी का बहुत देरीना जियाला है। हम शेर अफजल साहब से बात करते हैं। शेर अफजल साहब ये बताएगा कि मोहतरमा की कौन सी ऐसी खूबसूरत याद आज भी जिंदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार है, उसके बाद ज़िंदगी में किसी का शुक्रिया अदा करते तो भुट्टो साहब का करते हैं। वजह यह है कि हम ग़ुलामी में थे, ग़ुलाम थे, राजू के ग़ुलामी में थे और आज आज़ाद हुए तो भुट्टो की मेहरबानी से है हम लोग। और हम जाले बनने का वजह ही ये है कि किसी और पार्टी में कोई आते जाते हैं, हमारी पार्टी से कोई आदमी कहीं जाते भी नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो और हमारे वालिदा फ़ौत होकर हमने नहीं रोया, वालिद फ़ौत होकर हमने नहीं रोया, और भुट्टो वफ़ात हुआ तो हमने रोया। तो वो वजह क्या है? वजह ये है कि हमने इस पार्टी में देखा कि राजू की ग़ुलामी में आज राजू से आज़ाद कराया। हम अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकते थे, हम और कोई चीज़ तो छोड़े बोलो भी नहीं खेल सकते थे इनकी इजाज़त के बगैर। हम कोई खाना पीने के लिए चीज़ें तैयार करते थे तो इनकी इजाज़त के बगैर पहले ये लोग खाते थे, उसके बाद हमारे और बारी आ जाती थी। बहुत शुक्रिया। सायद सिराज साहब हमारे साथ मुझे। सायद साहब, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज के दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वालों के लिए यौम स्याह का दिन है, क्योंकि बल्कि पूरा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है। तो शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क में इस आवाम की खातिर आए, इतने थ्रेट होने के बावजूद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, क्योंकि इस भुट्टो उसने जो तालीम सीखी थी अपनी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से सीखी थी, तो इसलिए इस मुल्क की आवाम के खातिर, गरीबों के खातिर, किसानों के खातिर, मज़दूरों के खातिर अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। तो हम आज के दिन उसको खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के दिन। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीएस पार्टी के सीनियर रहनुमा बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर साहब, पाकिस्तान पीएस पार्टी का जो बुनियादी जो नज़रिया है, क्या वो आज भी कायम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्कर्दू टीवी का। यकीनन आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक सियाह तरीन दिन है। आज उस खातून को शहीद कर दिया गया जिसका मंशूर, जिन पार्टियों की मंशूर ये थी कि गरीब आवाम के लिए 3 नारा लेकर पाकिस्तान में बुनियाद रखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, रोटी कपड़ा मकान। और उस रोटी कपड़ा मकान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने अपनी जान पाकिस्तान के आवाम के लिए दिया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आप नाम ले लें तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखने के बाद इस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए रात दिन मेहनत की। आज पाकिस्तान के अंदर एटमी ताकत है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी। आज पाकिस्तान के अंदर गरीब किसान को जो उनका हुकूक दिया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेहरबानी। आज पाकिस्तान के अंदर ज़री इस्लाह लाया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाया। आज पाकिस्तान में गरीब अमीर का जो एक फ़र्क था वो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी नारे पे अमली जामा पहनाया। उसके बाद जब बीबी की दौर आई तो बीबी ने उसी मंशूर पर, रोटी कपड़ा मकान 3 मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, उसी मंशूर को बहाल रखने के लिए, उसी मंशूर के खातिर अपनी जान पाकिस्तान के अवाम के खातिर, पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जान का नजराना दिया। जैसा कि आपको पता है
कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर को कराची वापस आई तो हम लोग वहाँ पे थे कि 50 लाख से ज़्यादा आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इस्तकबाल किया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इस्तकबालिया प्रोग्राम था कि जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने बेनज़ीर की इस्तकबाल किया। और उस वक़्त जब सानिया कारसाज हुए शाम के टाइम पे, तो उसके अगले दिन उसमें हमारा 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, 400 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। इसके बावजूद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये थ्रेट मिला कि जी आप गड़ी लियाकत बाग में न जाना है क्योंकि आपको थ्रेट है, आप को शहीद कर देंगे, तो मोहतरमा ने ये कह कर वहाँ चली गई कि जी मेरी जान पहले खुदा के बाद, मैं अगर मुझे शहीद कोई करता है तो मेरी जान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गरीब आवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए मैंने वक़्फ़ कर दी है और ये जान आने जाने वाली शे है, लेकिन मैं मौत से या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो काम कर रहा है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो ये इसी बात पे मोहतरमा को शहीद किया गया। आज आप देखिए कि गड़ी खुदा बख्श में लाखों लोग जमा होते हैं। इसका वजह यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अपने मंशूर पर अमल करता है। आज गिलगित बल्तिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों में मोहतरमा को याद करते हैं। आज 14 साल हो गए मोहतरमा को शहीद होकर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर, हर जियाले अवाम, यहाँ तक कि जो जिन्होंने मोहतरमा को देखा नहीं है वो भी आज अक़ीदत के तौर पर हर प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। इसकी वजह यही है बुनियादी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन वाहिद लीडर है, वाहिद जमात है जो गरीब आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है और इंशाल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत करते रहेंगे, गरीब की नुमाइंदगी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इकबाल सेठी साहब, आपने मोहतरमा को बहुत करीब से देखा, सानिया कारसाज में भी आप वहीं पर मौजूद थे। जब मोहतरमा की शहादत की खबर आपने सुनी तो आपके जज्बात क्या थे? शुक्रिया नाज़िमुल हसन साहब, बहुत मेहरबानी। मोहतरमा जब शहीद हुआ तो हम यहाँ पे थे। हमें अपनी जिस तरह वालदा फौत हो गया इस तरह हमें महसूस हो गया और हम रोते हुए सेक्रेटरीट पहुँचा। सेक्रेटरीट से फिर हम रैली की शक्ल में यादगार तक गया। तो उसके ऊपर तो खैर मोहतरमा के ऊपर तो हमारे जो तंजीमी लोग था उन्होंने रोशनी डाला। बाकी एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी चैनल के वसात है कि पीपल्स पार्टी में लोग कह रहे हैं कि 2 ग्रुप हैं। ग्रुप नहीं है पीपल्स पार्टी में। आज 2 जगहों में मनाया है तो ये दोनों पीपल्स पार्टी के जैले हैं, वर्कर है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी का हर जगह में मोहतरमा के बरसी के हवाले से लोग न्याज डाल रहे हैं, मना रहे हैं। तो ये हम लोग का एजाज़ है कि ये ज़ुल्हक़ का बरसी नहीं मना रहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मना रहे और वो हर जगह में मना रहे। वो भी हमारे भाई है और हम लोगों ने भी इधर मनाया है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं 5 जनवरी को कि हमारे जितने भी नाराज़ कारकुन हैं सब इकट्ठे यहाँ पे जमा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं शहीद जमहूरियत दुख्तर मशरिक़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला स्कर्दू की जानिब से उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस इवेंट को कामयाब करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की क़ुरबानियों को कभी बुलाया नहीं जा सकता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी। उनकी क़ुरबानियों को और उनकी लाजवाल क़ुरबानियों को हमेशा पाकिस्तान समेत गिलगित बल्तिस्तान और ता क़यामत पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा। और आखिर में बेनज़ीर भुट्टो दुख्तर मशरिक़ और पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म उन्हें सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज पूरी दुनिया में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 14वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यकीनन मोहतरमा की शहादत न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम सानिया था, जिससे उस सानिये से आज तक लोग नहीं निकले। आज भी लोग मोहतरमा को याद करते हैं, याद करके रोते हैं और पीपल्स पार्टी मोहतरमा की उसी नज़रिए को लेकर आगे चल रही है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उसी नज़रिए पर आगे जाकर भी कायम रहता है या किसी और नज़रिए की तरफ जाता है। कैमरा टीम के साथ नाज़िमुल हसन सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।